हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमने बीहाइव बुक की एक सीरीज स्टार्ट की थी। उस सीरीज में हमने चैप्टर फर्स्ट और उस चैप्टर का पोएम, चैप्टर सेकंड का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड सब देखा। आज हम विंड पोएम पढ़ेंगे, क्लास 9th का विंड पोएम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, ये चैनल है लर्नर स्क्वाड्स, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि इस लॉकडाउन में सब अच्छे से स्टडी कर पाएँ। और ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये प्लेलिस्ट बनी हुई है बीहाइव नाम की। इसमें क्लास 9th के लिटरेचर के सारे पोर्शंस हैं और बीहाइव बुक के सारे पोर्शंस हैं। और भी चीज़ें हैं इस पे ग्रामर के जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। देखिए पोएम का नाम क्या है? विंड। Okay students, the name of our chapter is wind. Okay, we all know that wind is natural phenomena. In this poem the poet talks to the wind. The power of wind has been described and the poet says that wind is destructive. He has linked the destructive power of wind to the adversities of life and say that the big people break down but stronger people emerge out of adversities stronger. The poem gives us important message that we should be mentally tough and physically strong in order to survive the hardship of life. A weak person breaks down like a weak building and crumbles. We must make this destructive force our friend with our strength and determinations. Students, listen. In this poem, the poet compares difficulties of our life with wind. Our life is just like a wind. इस पोएम में देखिए स्टूडेंट्स, जो पोएट हैं वो हमारे जीवन को विंड से कंपेयर करते हैं और क्या कहते हैं कि हमें बहुत ही स्ट्रांग रहना चाहिए, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से बहुत ही स्ट्रांग रहना चाहिए अपने जीवन के कठिनाइयों को सामना करने के लिए। अगर हम कमज़ोर रहेंगे तो ठीक उसी प्रकार क्रम्बल हो जाएंगे जिस प्रकार एक कमज़ोर बिल्डिंग जो है वो विंड में क्रम्बल हो जाती है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। Wind, come softly, don't break the shutter of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the book of the shelves. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the book. You brought rain again. Listen here, what the poet wants to tell. The poet is talking to the wind. He asks the wind to come softly. Poet जो है वो wind से बात कर रहा है और वो wind को क्या कहता है कि आप softly आओ, प्रेम पूर्वक आओ, धीरे से आओ. So he is saying that the wind should not be very strong. He is saying that wind should not be very strong. Wind जो है बहुत strong नहीं होनी चाहिए. कैसे होनी चाहिए? Soft होनी चाहिए. It should be soft and subtle. बहुत ही नरमी से प्यार पूर्वक आना चाहिए. Then he says that the wind is very powerful. What he is saying that wind is very powerful. It is destructive. It breaks the shutter of windows and scatter the paper. क्या बोल रहे हैं कि विंड जो है वो बहुत ही पावरफुल है. वो विंडोज के शटर को भी ब्रेक कर देती है और पेपर को भी स्कैटर कर देती है, मतलब कि बिखरा देती है. When the wind is very powerful, all the books which are kept in the shelves fall down. What is saying? Don't throw down the book on the shelf. जो भी बुक है शेल्फ्स पे, उन बुक को आप थ्रो नहीं करो. So here the poet is describing the power of wind. Then he says to the wind to look at the destruction that it had done. What he is saying? He is saying that I know that you have much power, but please don't shatter the window, don't scatter the paper, don't throw the books on the shelf. मतलब कि पोएट जो है वो विंड से कहते हैं कि मैं यह जानता हूँ कि आप बहुत ही पावरफुल हैं, लेकिन प्लीज़ आप ना ये विंडोज़ के शटर को ब्रेक नहीं करिए, पेपर को इधर उधर फैलाइए नहीं, और जो भी तख्ते पे, शेल्फ्स का मतलब क्या होता है, तख्ते पे जो भी किताबें रखी हुई हैं उसे आप इधर उधर मत करिए.
Listen students, what the poet is saying, that wind is much powerful, that he breaks all the small things, small plants, tiny children's, etc. Okay, he is saying that you are showing your power on weak person. क्या बोल रहे हैं कि आप अपने पावर को कमजोर लोगों पे दिखा रहे हो. There look what you did, you threw all them down, you tore the pages of books. क्या बोलते हैं, हे विंड देखो तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ नीचे की तरफ फेंक दिया, सब कुछ नीचे की तरफ फेंक दिया, तुमने सारे पेजेस जो है वो टोर कर दिए, मतलब कि मेरे बुक के सारे पेजेस फाड़ दिए. यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुमने वर्षा भी वापस ला दी. आंधी को क्या बोलते हैं कि तुमने वर्षा भी वापस ला दी. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. व्हाट ही सेइंग, दैट यू आर वेरी क्लेवर, यू ऑलवेज पोक्स द वीक things. Okay, he is saying you should come softly, you should not make violence, you are very clever, you are poking all the weak things. मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि तुम जो हो बहुत ही चतुर हो, अपने से कमजोर चीजों पे तुम आक्रमण करते हो. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling body, crumbling lives, crumbling heart. Well, listen students, here the word crumbling is repeated. Here the word crumbling is repeated so many times to lay stress that everything crumble in the face of a strong field. So the writer is saying that when wind is very powerful, it is very strong. Crumbling houses, crumble करना का मतलब कि मसल देना, मतलब कि तुम इतनी तेज हो, इतने पावरफुल हो कि तुम हाउस को भी क्रम्बल कर देते हो, डोर्स को भी क्रम्बल कर देते हो, रैफ्टर्स को भी क्रम्बल कर देते हो, वुड को भी. यहाँ पे हर जगह क्रम्बल शब्द का इसलिए यूज किया गया है स्टूडेंट्स, ताकि उसके पावर को शो किया जा सके. किसके पावर को, विंड के पावर को शो किया जा सके, ये बताया जा सके कि विंड जो है वो बहुत ही पावरफुल है. ठीक उसी तरह क्या कर रहा है कि हमें इतना पावरफुल नहीं होना चाहिए, हमें सॉफ्ट हार्टेड होना चाहिए, ताकि हम किसी के हार्ट को क्रम्बल ना कर सके. हमें इतना पावरफुल नहीं होना चाहिए, हमें विंड की तरह नहीं होना चाहिए कि हम किसी के हार्ट को क्रम्बल कर सके. Now see next, what is the wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the door firmly. Now see students, what the poet is saying, the poet is addressing to wind as wind god. पोएट जो है वो विंड को किस चीज से एड्रेस कर रहे हैं, विंड गॉड से, भगवान की तरह एड्रेस कर रहे हैं. एंड ही इज सेइंग दैट द पावरफुल गॉड ऑफ विंड विनोज, दैट मीन्स ही शिफ्ट्स ऑल द पीपल एंड दोज पीपल हु आर वीकर फॉल डाउन एंड गेट क्रस्ड. सो हियर अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन wheat and people. Just like we winnow the wheat to separate the grain from chaff, the wind god separates the strong people from the weak people. When there is a strong wind, all the things that are weak fall and get crushed. Listen students, here poet is comparing the wind from wind god. Wind को वो भगवान से कंपेयर कर दिए कि तुम हमें विनो करके क्रश मत करो. विनोइंग क्या होता है स्टूडेंट्स, वो जब धान से अलग करते हैं ना, भूसे को अलग करते हैं, बिल्कुल इसी तरह बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप ही विंड भगवान, आप स्ट्रॉन्ग पीपल और वीक पीपल को विनो मत करो, अलग मत करो, और अलग करके कमजोर लोगों को क्रश मत करो. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the door firmly. What he is saying कि द पोएट वॉन्ट्स टू मेक फ्रेंड विद द विंड. लोग से क्या कह रहे हैं कि विंड जो है वो भगवान है, हमें उनसे दोस्ती करनी चाहिए और दोस्ती करके स्ट्रॉन्ग होम बिल्ड करना चाहिए. लेट्स ज्वाइन द डोर फ्रेमली, और डोर्स को बहुत ही फ्रीमली ज्वाइंट करना चाहिए. प्रैक्टिस टू फ्रेम द बॉडी, और हमें अपने बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. मेक द हार्ट स्टीड फास्ट.
do this and the wind will be friend with us. Listen students, what the poet is saying. Poet is saying कि हमें इन सब अपने आप को, अपने बॉडी को, अपने विंडोज़ को, अपने डोर को, अपने घर को, इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. और जब ये सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो विंड हमारा फ्रेंड बन जाएगा, विंड हमसे फ्रेंडशिप कर जाएगा. And then he says that we should also make our bodies strong and heart frame to face these challenges. Now listen students, what the narrator is doing, what the poet is doing. Poet is comparing the wind from our real life, and he is saying that we should make our heart also strong and our bodies also strong. That we should make our body and heart so strong to compete the wind. If we want to compete the wind, if we want to face the challenges, we have to become strong enough to fight with it. We will not feel that they are troublesome. If we will be strong, then we will not feel the troubles. We will not think that the wind is much stronger than us. Now see the last stanza. The wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish. His friendship is good, we praise him every day. The poet has kept the wind on a pedestal. He is comparing the wind to God. देखिए, एक बैठका से, मतलब कि एक ऐसे जगह पे विंड को रख दिया है, मान लो कि वह एक राजा में राजा है, वो बहुत ही बड़ी कोई वस्तु है, ऐसे जगह पे विंड को पोएट ने रख दिया है. और विंड को पोएट ने किस चीज़ के साथ कंपेयर किया है? गॉड के साथ विंड को कंपेयर किया है. He says that wind is God and we praise wind every day. The poet wants to tell us that the wind is a God and we used to praise the wind every day. He adds that everything that is weak get finished off in the face of a strong wind, and all the things that are strong flourish and grow to become stronger. What the poet wants to tell, that everything which is strong, that only is protected in strong wind, and all the things which are weak, they are blown in wind. देखिए पोएट जो है वो क्या कहते हैं कि वही चीज़ें जो स्ट्रांग हैं वही विंड में बचेंगी, और जो भी कमज़ोर चीज़ें हैं वो आंधी में ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि वह उसके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी. His friendship is good, we praise him every day. What the poet wants to tell, that wind friendship is very good, we should praise him every day. Now students, the poet is comparing our life according to this wind. The poet wants to tell us that we should make ourselves physically and mentally strong to face these challenges. And once we are strong enough, we will overcome the challenges. We will become friends with them. What he is saying? कि हमें अपने आप को मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ताकि हम किसी भी मुश्किल समय को बहुत ही आसानी से झेल पाए, बहुत ही आसानी से उससे बाहर निकल पाए. यदि हम विंड के समान ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो विंड हमसे दुश्मनी नहीं करेगा, विंड हमसे दोस्ती करेगा, बिकॉज हम भी उसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग हैं. स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यह पोएम समझ में आ गया. देखिए, ये पोएम जो है वो सुब्रमण्य भारती ने लिखा है. ये कौन थे? एक तमिल पोएट थे. इनकी सारी पोएट्री तमिल में हुआ करती थी, और इनके पोएट्री को कौन कन्वर्ट करते थे? ए.के. रामानुजन. यहाँ देखिए लिखा हुआ है सुब्रमण्य भारती 1882-1921. ये इनकी लाइफ पीरियड है. इज़ अ ग्रेट तमिल पोएट फेमस फॉर हिज पैट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा. देखिए, ये बहुत ही फेमस पोएट हैं, और इनका जो प्री इंडिपेंडेंस एरा मतलब कि आज़ादी से पूर्व का जो समय था, उस समय के ये बहुत ही अच्छे पैट्रियोटिज्म मतलब कि राष्ट्रवादी कवि थे. और किस भाषा में लिखते थे? तमिल में लिखते थे. ए.के. रामानुजन इज अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री. देखिए स्टूडेंट, ए.के. रामानुजन एक पोएट हैं. ये क्या करते थे? इनके पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे. ये कन्नड़ के रहने वाले थे और यह एक इंग्लिश पोएट थे, और ये क्लासिकल और मॉडर्न पोएट्री के ट्रांसलेशन के लिए फेमस थे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पोएम समझ में आ गया है.
पोयम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। और अभी हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, thinking about the poem, what is the first question? Now let's start. What are the things the wind does in the first stanza? हमने पोएम को अभी पढ़ा था और उसमें कौन सी ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसे विंड फर्स्ट स्टेंजा में कर रहे होते हैं। जस्ट अ मिनट, देखते हैं। The wind breaks the door of the window, scatter the paper and throw down the books on the shelf. It also tear the pages of book and bring rain. Students, हमने देखा था कि फर्स्ट स्टेंजा में जो पोएट हैं वो विंड के बारे में बता रहे हैं और वो क्या बता रहे हैं कि जो विंड है वो डोर को ब्रेक कर दे रहे हैं, विंडो को स्कैटर्ड कर दे रहे हैं, सॉरी डोर और विंडो को ब्रेक कर देते हैं और पेपर्स को क्या करते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं और बुक सेल्फ से जो तख्ते हैं वहाँ से किताबें इधर उधर बिखेर देते हैं। इट ऑल्सो टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स एंड ब्रिंग रेन, और वो क्या करते हैं जब सेल्फ से बुक को इधर उधर फेंक देते हैं तो बुक के पेजेस जो हैं वो फट जाते हैं और उसके बाद वर्षा होने लगती है। ये विंड की कंडीशन होती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टैंजा। नाउ सी नेक्स्ट वन, सेकंड क्वेश्चन। हैव यू एवर सीन एनीबडी winnow grain at home or in a paddy field? What is the word in your language for winnowing? What do you people use for winnowing? Give the word in your language if you know them. देखिए स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं कि क्या आपने कभी किसी को ग्रेन विनो करते हुए देखा है घर पे या फिर पैडी फील्ड में, मतलब कि खेतों में। What is the word in your language? आपके लैंग्वेज में विनोइंग को क्या कहा जाता है, ऐसे कोई वर्ड में। देखिए विनोइंग की यहाँ एक पिक्चर लगी हुई है, इसमें ये दो महिलाएं हैं और क्या कर रही हैं ये, अगर हम अपने जनरल भाषा में कहें तो क्या है, ये सूप है और इसमें अनाज है और इसको विनोई कर रही हैं, अलग कर रही हैं। आंसर क्या होगा इसका? यस, आई हैव सीन लेडीज विनो ग्रेन इन माई विलेज। हाँ, मैंने अपने गांव में देखा है लेडीज को ग्रेन को विनो करते हुए। पीपल विनो ग्रेन्स टू रिमूव स्ट्रॉ, चाफ एंड डस्ट फाउंड इन ग्रेन देयर। देखिए क्यों होता है ये, क्यों विनो करते हैं, ताकि उसमें से जो भूसा होता है, घास फूस होता है, डस्ट होता है, उन सब चीज़ों को अलग करें। किस चीज़ में से? ग्रेन में से। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेल्फी, सिफ्ट एंड चाफ। देखिए और भी इसके नाम हैं जैसे कि डेल्फी, सिफ्ट और चाफ। ओके, now move to next question. What is next question? What does the poet say the wind god winnows? What does poet जो है वो wind god के बारे में क्या कहते हैं कि wind god जो है वो क्या winnow करते हैं, क्या separate करते हैं। The poet says that the wind god winnows all the things available at home. poet क्या कहते हैं कि जो wind god है वो हर एक चीज़ जो घर में है उन सब चीज़ों को winnow कर देते हैं, उन सब चीज़ों की छटाई कर देते हैं। हाउ डज वी मेक विंड आवर फ्रेंड? हम विंड को अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं? जो तेज हवा है उसे हम अपना मित्र कैसे बना सकते हैं? द पोएट सजेस्ट दैट वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस एंड फिक्स द डोर्स firmly टू मेक फ्रेंड विद द विंड। देखिए पोएट क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें मजबूत घर बनाना चाहिए, अपने घरों को मजबूत बनाना चाहिए और जो डोर हैं उनको भी मजबूती से लगवाना चाहिए ताकि हमारी दोस्ती विंड से हो जाए। क्योंकि विंड अकॉर्डिंग टू पोएट विंड जो है वो स्ट्रॉन्ग को अलग और वीक को अलग करता है, मतलब कि जो मजबूत चीज़ें हैं उनसे फ्रेंडशिप करता है, जो कमज़ोर चीज़ें हैं उन्हें क्रम्बल कर देता है। As in life, we should be strong enough to face the difficulties in life. और according to poet, हमें अपनी ज़िंदगी में भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम किसी भी डिफ़िकल्टीज़ को अपने जीवन में आसानी से फेस कर पाएँ। डिफ़िकल्टीज़ जब भी आए हमारे जीवन में तो हम उससे भागे नहीं, उस मुसीबत का हम सामना करें। हमें अपने जीवन में इतना स्ट्रांग बनना चाहिए। Now see the next question. What do the last four line of the poem means to you?
जो पोयम के लास्ट 4 लाइन है वो क्या मीन करते हैं, देखते हैं। The last 4 lines convey the message that those who are not determined and lack confidence face defeat, and those who set their target to make sincere effort are not disturbed by any obstacle. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं कि वह लोग जो जीवन में मजबूत हैं उन्हें कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है, और वह लोग जो जीवन में बहुत मतलब कि नॉट डिटरमाइन एंड लैक कॉन्फिडेंस, जिनके पास कॉन्फिडेंस कम होता है, उन्हें डिफीट का सामना करना पड़ता है, और वह लोग जो बहुत ही सिंसियर होते हैं अपने टारगेट के प्रति, एफर्ट्स लगाते हैं, उनमें कभी भी ऑब्स्टिकल का मतलब क्या होता है, बाधाएं, उनके कार्य में कभी भी कोई किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस और किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आती हैं। How does the poet speak to the wind, in anger or with humor? You must also have seen or heard of the wind crumbling leaves. What is your response to this? Is it same as the poet? देखिए क्या बोल रहे हैं कि पोएट जो है वो विंड से कैसी बातें करते हैं, क्या वो गुस्से में बात करते हैं या फिर प्रेम से बात करते हैं। तो आपने भी कभी सुना होगा कि विंड मतलब जब तेज हवा बहती है तो पत्ते जो हैं और जीवन जो है मतलब कि क्रम्बलिंग लाइव्स, मतलब कि जैसे हमने क्रम्बलिंग वर्ड का यूज़ देखा था पोयम में, उसी प्रकार जैसे हमने क्रम्बलिंग वर्ड्स का यूज़ देखा था, क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, मतलब कि अनेक चीज़ों के क्रम्बल्स कर देते हैं, मसल देता है विंड। ये चीज़ आपने भी कभी देखी होगी या फिर सुना होगा। व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स टू दिस? आपका इसके प्रति क्या रिस्पॉन्स है? क्या वही रिस्पॉन्स है जो पोएट का है? देखते हैं। द पोएट स्पीक्स टू द विंड विथ ह्यूमर। द पोएट्स बिहेवियर इज पर्टिनेंट एंड आई हैव ऑल्सो सीन द विंड डिवास्टेटिंग द प्रॉपर्टी मर्सीलेसली. The poet invites the wind to attack him and intend to prepare himself for the attack and make him strong, so he can do strong friendship with the wind. देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, पोएट जो है वो पूरे ह्यूमर के साथ विंड से बात करते हैं, बहुत ही नम्रता पूर्वक बात करते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि वह बोलते हैं विंड से कि आओ और मेरे पे अटैक करो। और हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि हम सब ने, आई हैव ऑल्सो सीन, सब ने विंड देखा होगा, और विंड जब मर्सीलेसली बिना दयापूर्वक कैसे प्रॉपर्टीज़ का ऐसे नुकसान करते हैं, लाइफ्स का नुकसान करते हैं, वो सब भी हमने देखा है। लेकिन पोएट क्या करते हैं, पोएट विंड को इनवाइट करते हैं कि फिर तुम आओ और मुझ पे अटैक करो, मैं तुम्हारे इस अटैक से डरने वाला नहीं हूँ, मैं अपने आप को और भी मजबूत बनाऊंगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हिन नहीं होगा, यहाँ पे हिम होगा, एम होगा। ओके, एम बना लीजिएगा इसको। ओहो, मैंने तो गजब ही एम बना दिया। यहाँ पे एम होगा, HIM है, हिम। यहाँ पे हिम होगा। ओके, मेक हिम स्ट्रांग सो ही कैन डू स्ट्रांग फ्रेंडशिप विद द विंड। वो क्या बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि विंड आए और मुझ पे अटैक करे ताकि मैं और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊँ और विंड के साथ फ्रेंडशिप कर पाऊँ। ओके, ये तो लास्ट क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा, पोयम जो हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया हुआ कैसा लगा, क्वेश्चन आंसर कैसा लगा, ये हमें कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन में सब लोग घर पे बैठे बैठे बहुत ही ईजिली इस चैप्टर्स को पढ़ सकें, समझ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त स्टूडेंट्स क्या करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, बिकॉज हम लाइव क्लासेस में भी आते रहते हैं, और जो भी अपडेट्स होंगे चैनल्स के साथ वो आपको मिलते रहेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।